Good morning, dear students. Today we will start a new topic, that is human development in India, its indicators. So the first indicator is indicator of economic attainment. Economic attainment means something which is related to money, जो पैसों से related है. Now when we talk about the economic attainment, सबसे पहले जो हमारे दो points आते हैं वो है हमारे GDP और GNP. GDP means gross domestic product and GNP means gross national product. So GDP tells us, it provides us an estimate about the size and growth rate of an economy. आपकी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो उसकी कितनी ग्रोथ रेट है ये आपको GDP के थ्रू पता चलता है. Now one of the important factor which should be discussed here is when we are talking about economic attainment, the most important factor is we have to talk about the poverty rate in a country. So when we talk about the poverty line, states having more than 30% of people living below the poverty line is Chhattisgarh, Jharkhand and Madhya Pradesh. Next we have the states having people 10 to 20% of people living under the poverty line is Gujarat, Uttarakhand and Maharashtra. Next we have poverty line below 10%, that is Delhi, Goa and Kerala. नेक्स्ट वी हैव इंडिकेटर्स ऑफ हेल्दी लाइफ. हेल्दी लाइफ मतलब कि आप कितने हेल्दी हो, ये बात डिसाइड करता है कि किसी कंट्री में कितनी डेवलपमेंट हो रही है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अ हेल्दी लाइफ, लाइफ फ्री फ्रॉम इलनेस, लॉन्ग लाइफ स्पैन, आपकी लंबी उम्र. मेजर्स ऑफ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ इंक्लूड्स प्री एंड पोस्ट नेटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ to reduce the infant mortality rate, which is also known as IMR. Post delivery, that many times it also happens that after the delivery the mother dies. So these things must be reduced in our country, and these things take place at a large level, at a large scale. Apart from all these, health care facilities for the old aged people, जो बूढ़े लोग हैं उन लोगों के लिए भी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए अपनी कंट्री में. एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्योंकि कई ऐसे भी लोग होते हैं, स्पेशली द पुअर पीपल हु आर नॉट हैविंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन डाइट, और इसकी वजह से वो क्या होता है, वो मैल नरिश्ड हो जाते हैं. सो ये सारी चीज़ें अगर किसी कंट्री में अवेलेबल है, देन वी कैन से दैट कंट्री इज़ डेवलप्ड. अदरवाइज यू कैन नॉट से दैट अ कंट्री इज़ हैविंग ह्यूमन डेवलपमेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अचीवमेंट्स. सो इफ़ वी टॉक अबाउट सम अचीवमेंट, तो इंडिया हैज़ डन very well in some of the health indicators, like decline in death rate from 25.1 per thousand in 1951 to 6.5 per thousand in 2015. Next is infant mortality rate. When we talk about the very small children who just take birth, so that has also reduced from 148 per thousand to 37 during the same period. Similarly, we have also succeeded in increasing the life expectancy at birth from 37.1 years to 66.9 years for males and 36.2 to 70 years for females from 1951 to 2015. So all these are some of our achievements. Now the situation becomes alarming and depressing when we talk about gender specific and rural एंड अर्बन हेल्थ इंडिकेटर्स. जब हम किसी जेंडर स्पेसिफिक जब हम बात करते हैं हेल्थ इंडिकेटर की, देन द सिचुएशन बिकम्स वेरी अलार्मिंग. सो इफ वी टॉक अबाउट द चाइल्ड सेक्स रेशियो विच इंक्लूड्स द चिल्ड्रन इन द 0 to 6 एज ईयर्स कैटेगरी, देन वी कैन से दैट एक्सेप्ट केरला, लिविंग केरला विच इज़ हैविंग अ वेरी हाई लिटरेसी रेट, द cases are very depressing, especially in the states of Haryana and Punjab, where the child sex ratio is below 850 female children per 1000 male children. So we know that in Haryana and Punjab especially, what happens that the female child are not wanted rather than the male child. There is a desire for a male child, so this is one of the major reason. Next we also have Swachh Bharat mission. So you must have heard about the Swachh Bharat mission. So this was started by the government of India, because it is believed that if we are having a healthy mind, then we are having a healthy body.
and in order to have a healthy body we need a clean environment, especially in terms of the clean air, water, noise free environment etc. So our government, हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी स्टेप्स ली है उन्होंने, और स्टेप्स ये है, उनका जो बेसिक एम है स्वच्छ भारत मिशन का वो ये है कि हमें इंडिया को पोल्यूशन फ्री, इंडिया का जो एनवायरनमेंट है उसे पोल्यूशन फ्री बनाना है। ऑल्सो सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव है हमारी गवर्नमेंट की रिगार्डिंग द स्वच्छ भारत मिशन इज़ टू मेक इंडिया ओपन डिफेक्शन फ्री। जैसे कई बार आप सुनते होंगे कि लोग खुले में जा कर के शौच करते हैं, सो द एम ऑफ द गवर्नमेंट इज़ टू रिमूव दैट। नेक्स्ट वी हैव the provisions for the supply of clean energy fuel LPG to all households in rural India to reduce domestic pollution। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये भी आप सुने होंगे कि जो पुअर फैमिलीज़ होते हैं उनको LPG प्रोवाइड की जाए। तो इससे क्या होगा कि जो वो लोग जो फ्यूल यूज़ करते हैं अपने कुकिंग प्रोसेस के लिए उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो अगर LPG होगी तो पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइडिंग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। हर घर में पीने लायक पानी होना चाहिए, ये भी एक एम है स्वच्छ भारत मिशन का, क्योंकि पानी अगर गंदा होता है, इफ़ द वाटर इज़ पोल्यूटेड देन ऑल्सो वी हैव वेरियस काइंड्स ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेज। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोमोटिंग द यूज़ ऑफ नॉन कन्वेंशनल मीन्स रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी। Next we have indicators of social development. So social development means what? When the society is developing, and how we can say, हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी जो society है वो developed है। So we can say if the society is having freedom, because we always correlate development with freedom. Social empowerment तब कहा जा सकता है जब हमारी सोसाइटी में फ्रीडम है। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? हंगर, भूखमरी से, पॉवर्टी, गरीबी से, बॉन्डेज, बंधुआ मजदूरी से, या फिर इलिटरेसी, साक्षरता दर कम, लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इलिटरेसी अनपढ़ होना। जब ये सारी चीज़ें हटेंगी हमारी सोसाइटी से, इसमें आप बहुत सारे और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो लाइक करप्शन, टेररिज्म एंड ऑल। सो जब ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी से हट जाएंगी देन वी कैन से दैट वी हैव अटेन सोशल डेवलपमेंट। सो लिटरेसी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट अचीव करने के लिए लिटरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जब हम लिटरेसी इन इंडिया की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज़ 74.04%। फीमेल लिटरेसी नाउ सी अगेन इट इज़ 65.46, इट इज़ लेस एज कम्पेयर टू द ओवरऑल लिटरेसी रेट। एंड स्टेट विद द हाइएस्ट लिटरेसी रेट इज़ केरला। केरला में सबसे ज़्यादा आपके पढ़े लिखे लोग होते हैं, दैट इज़ 93.9%। स्टेट विद द लोएस्ट लिटरेसी इज़ बिहार, 63.82%। स्टेट विद हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी, ये पहले वाला जो आपका था केरला एंड बिहार, ये ओवरऑल लिटरेसी की बात हो रही थी। अगर हम फीमेल लिटरेसी की बात करें तो अगेन इट इज़ केरला। केरला में फिर से आप देखोगे कि फीमेल भी वहाँ पर बहुत अधिक लिटरेट हैं, बहुत अधिक पढ़ी लिखी हैं। And the state with the lowest female literacy is Rajasthan, because in Rajasthan usually the women they don't have very high social value and so they are not even allowed to study. So this is all for today. Thank you and have a nice day ahead.